Hello everyone, I am Kartika and here we are again with another video of Soka Showdown. So आज हम बात करने वाले हैं नोएडा की एक यूनिवर्सिटी दैट इज बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में एंड बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने के लिए और रिव्यूज देने के लिए आज हमारे साथ है रजत. सो हाय रजत, Hi, ma'am. हाउ आर यू डूइंग? I'm very good. ओके, सो जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ अ बिट. So I am Rajat. Hello. I'm a third year student of Bennett University, pursuing BA LLB to be specific, and someone who fell in love with the law. And the credit goes to my beloved institution of legal edge. Thank you. ओके ओके, सो यू आर अ लीगल एज स्टूडेंट, सो कुछ कहना चाहेंगे लीगल एज के बारे में? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I was at Legal Edge Bhopal in the year 2019 and 20, and that was a fantastic experience for me. Being over there, teachers were like fantastic. That was the best experience of my life, in short. ओके ओके, सो बेनेट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें सो ये थोड़ी नई यूनिवर्सिटी है. सो Yes. कैसा क्या वहाँ का सब कुछ है? व्हाट अबाउट बेनेट यूनिवर्सिटी? मैम, बेनेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ये 2016 में एस्टेब्लिश हुई है एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑलमाइटी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप. ओके एंड इसका जो स्कूल ऑफ लॉ स्टार्ट हुआ वो 2017 में स्टार्ट हुआ. फर्स्ट बैच हुआ स्टार्ट बीएलएलबी के साथ, बीबीएलएलबी के साथ. एंड जो सेकंड बैच था वो 2018 में स्टार्ट हुआ विथ बीएलएलबी. सो हमारा जो फर्स्ट बैच है अभी जाकर के पास आउट होने वाला है ऑफ बीएलएलबी. ओके ओके, सो बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस क्या है? किस किस बेसिस पे एडमिशन लिए जाते हैं? And there are three criteria of admission. पहला आता है क्लैट, दूसरा आता है आपके 12th के मार्क्स, और तीसरा आता है आपके सीयूटी एग्जाम के बारे में. ओके तो थ्री क्राइटेरिया होते हैं इनके एडमिशन के. ओके ओके, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत नई नई यूनिवर्सिटी है बेनेट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा ही होना चाहिए. सो हाउ इज द इंफ्रास्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Infrastructure is very fantastic, हम्म. and these people are literally burning cash and making infrastructure. Of course, when it comes to the School of Law, we have two separate buildings of School of Law. वहाँ पे moot court halls, legal aid clinics, pro bono department. We have a separate discussion rooms when if we are going to, for example, if we are going to moot competitions, we are allotted a separate discussion rooms, which is fully air conditioned and everything, and we have a separate law library which is apart from the central library which we have in our university. So, yes. ओके ओके, एंड हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं? Hostel facilities are really outstanding because we have fully air conditioned hostels. All rooms are twin sharing, and the perks of living in this hostel that you are not supposed to clean your room. There is a cleaning department specifically Okay. for you. You are not supposed to get your laundry done because there is a free laundry access to you. And there's a dedicated OPS help desk for all your needs. Whatever you want to get done, you have to just email and that thing will be done for you. And we have a 10 wing of boys hostel and almost 8 wings of girls hostel. So it is a massive hostel in-house, in-campus hostels. Yes. एंड इतना सब फैसिलिटीज हैं तो फीस कितनी है हॉस्टल की? For sure. Comparing all other colleges to this college would be not very appropriate because fees of obviously on a higher end. We have a 3,40,000 of tuition fees and 1,75,000 of hostel fees. But the plus point here is that if you have a good score in CLAT or a good score in boards or CUET, you can get a scholarship of up to 100% scholarship. एंड मेरे खुद के बैचमेट्स काफी हैं, कई बैचमेट्स हैं जो अभी भी स्कॉलरशिप अवेल कर पा रहे हैं थर्ड ईयर में आने के बाद. And almost 20% of my whole batchmate, they are availing a scholarship. So yes, scholarship is very good for here. Okay. And what about the core management of Bennett University? Core management is absolutely fantastic. See, I'm repeating this word absolutely fantastic because it is. I'm emphasizing on that. See, the thing is that this university is relatively new. So what they are doing is they are asking other institutions, for example, other teachers from all the NLUs, they are coming to our college. They are teaching over here. We have a very good guest faculties. There are a lot of judges who are coming to our college and teaching us the things, and the level goes up when there are faculties who are Oxford written, who have studied in Oxford and now teaching in Bennett University. So yes, the level is high here. Okay.
एंड कितनी सीट्स ऑफर्ड हैं, कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं? Seats are again limited to 120 seats to each BLLB and BBLLB respectively. And we had a 3-year LLB course, which is now discontinued. हम्म. And the reason for that is specifically that हमारा college specifically focus करना चाह रहा है BBLLB and BLLB के ऊपर. So ओके. ओके. एंड इसी के साथ साथ कौन से कमिटीज हैं, कौन से सेल्स हैं? यस मैम, तो उसके बारे में बात करते हैं तो मोट कोर्ट हम्म. कमेटी है हमारे पास जो कि बहुत थ्राइविंग है, और उसके बाद प्रो बोनो है, लीगल एड है, रिसर्च कमिटीज हैं बहुत सारी हमारे यहाँ पे. एंड बीइंग ए रिलेटिवली न्यू स्कूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे आपके पास ये भी स्कोप रहता है कि आप आकर के कोई, अगर आपके पास सच में आइडिया है, अच्छा आइडिया है, तो आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई नई कमेटी भी अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी है तो. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे बैचमेट ने ट्रायल एडवोकेसी कमेटी स्टार्ट करी है. तो ओके. वी आर डिसइंटीग्रेटिंग ऑल द कमिटीज विच वी हम्म. हैव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. प्लस पॉइंट यहाँ पे ये रहता है कि आप सिर्फ स्कूल ऑफ लॉ में नहीं है, आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हम्म. तो आपको एक्सपोजर मिलता है बाकी सारे भी कोर्सेज का. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बेनेट यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पूरा पूरा पूरे कॉलेज को लेकर के उसमें आपके बीटेक के स्टूडेंट भी आएंगे, उसके बाद में बीबीए के स्टूडेंट भी आएंगे, लॉ के स्टूडेंट भी आएंगे. तो सब एक साथ आकर के वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको देते हैं कि आप हम्म. एक अच्छे यूनिवर्सिटी वाइड लेवल पे जाकर के आप हम्म. रिसर्च पर्पस में काम कर सके, नॉट जस्ट लॉ स्कूल. उसके अलावा एक सेरेब्रम क्लब भी आता है जो एमयूएंस कंडक्ट कराता है, विच इज वेरी हेल्दी फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हम्म. जो एक उनको स्पीकिंग स्किल्स और ये सारी चीज डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. ओके. आप कौन सी कमिटीज का पार्ट हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं किसी कमेटी का पार्ट नहीं हूँ, बट आई ओके. एम ए गुड मोटर. मैंने 3 ओके. मोट कोर्ट्स में पार्टिसिपेट हम्म. किया है. बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन ऑफ माइन हम्म. मैं कमिटीज का पार्ट नहीं हूँ, बिकॉज ओके. दे आर सम पर्सनल रीजन. ओके. एंड मूड कोर्ट कल्चर एंड डिबेटिंग कल्चर कैसा है बेनेट का? इट इज वेरी गुड. हमारे यहाँ ओपन चैलेंजेस हम्म. सिस्टम चलता है मोट कोर्ट्स के लिए. हम्म. और डिबेटिंग कल्चर्स तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन हाउस जो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं हम्म. वो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हैं. बहुत सारे इन हाउस कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, नॉट जस्ट बाय स्कूल ऑफ लॉ बट बाय द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड द other 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 committees which we have in here. So yes, ओके. it is very thriving. और बहुत सारे होते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स. एंड हमको बाहर जाने का भी बहुत मौका दिया जाता है. हमारे पास रेगुलर मेल्स आते रहते हैं कि आप यहाँ जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चांसेस बहुत सारे हैं, आपको एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल सकता है यहाँ पे, ओके. और अलग अलग जगह जा करके. ओके. एज काफी नई यूनिवर्सिटी है, सो इतनी प्लेसमेंट्स तो अभी होंगी नहीं, बट इंटर्नशिप्स हैं, कुछ प्रोवाइड करवाते हैं कॉलेज से? यस ऑफ कोर्स, इंटर्नशिप्स हमारे यहाँ डायरेक्ट इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की रही जाती हैं बहुत अच्छे हम्म. से. तो इंटर्नशिप्स का ये रूटीन होता है कि हम लोग जब जैसे ही फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमको हम्म. एक जगह पे साइन अप करवाया जाता है, दैट इज सुपर सेट. तो सुपर ओके. सेट पे जैसे ही हम लोग साइन अप होते हैं तो हमको वहां से एकदम रेगुलर जो भी इंटर्नशिप की हमारे पास ऑफर्स आते रहते हैं, वो डायरेक्टली वहाँ ऑफर्स आते रहते हैं. मैंने खुद 2 इंटर्नशिप्स कर रखी हैं जो कि मुझे डायरेक्टली कॉलेज ने प्रोवाइड करी थी. हम्म. एंड दैट दोज आर गुड इंटर्नशिप्स, डिसेंट इंटर्नशिप्स when you are in first and second year. उसके बाद ओके. जब थर्ड ईयर में अभी हम लोग आए तो वी आर गेटिंग डायरेक्ट इंटर्नशिप फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स. तो वो डायरेक्ट इंटर्नशिप हमको हम लोग को दे रहे हैं. ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन इन दैट कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इंटर्नशिप को लेने के लिए. इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग दैट देन यू विल ऑब्वियसली गेट अ गुड इंटर्नशिप देयर आल्सो. ओके. एज बेनेट इज क्वाइट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, तो आपके ऐसे क्या पॉइंट्स थे कि आई वांट टू गो टू फॉर बेनेट यूनिवर्सिटी, एंड आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं कि आपको क्यों बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्ट करना चाहिए? मेजर पॉइंट यहाँ आने का ये होगा कि अगर आप एक अच्छा एनएलयू, आप एक अच्छा हम्म. कॉलेज नहीं ले पाते हैं, सी आई एम वेरी श्योर अबाउट द स्टूडेंट्स की जो बच्चे हम्म. मेहनत किए और जो एनएलयूज में है दे आर वेरी गुड, दे आर एट वेरी गुड पेडेस्टल. हम्म. बट जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं, एंड इफ देयर पेरेंट्स इफ दे आर एबल टू पे टू द कॉलेज, तो हम्म. वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको इक्वल फैसिलिटीज मिलने वाली हैं जो हम्म. उनको एक एनएलयू में मिल सकती थी. हम्म. एंड मैं इस बात को डिनाई नहीं करना चाहता हूँ, ना ओवर हाइप करके बोलना चाह रहा हूँ हम्म. कि कुछ एरियाज में हमारे पास वैसी फैसिलिटीज हैं जो शायद एक एनएलयू स्टूडेंट के पास नहीं मिल पा रही हैं. तो यस, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड फॉर दिस. एंड यस, ओके. ऑफ कोर्स अगर आप किसी स्कॉलरशिप से आते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि you are not paying a lot of fees and you are ओके. getting all the benefits which may you have get in a good NLU or in other institutions, good institutions of our ओके. country.
अगर एनएलयू से कंपेयर करें, तो बेनेट में ऐसे क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो एनएलयू में भी आपको मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए गुड लाइब्रेरी, वी हैव अ गुड हुँ, लाइब्रेरी। हुँ, आपका लिविंग स्पेस यहाँ का बहुत अच्छा है। हुँ, टीचर्स टीचर्स आर फैंटास्टिक। अब ये कंडीशन आ जाती है कि हम लोग अगर डायरेक्ट एनएलयू से टीचर्स बुला रहे हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, हुँ, डायरेक्ट जजेस आके पढ़ा रहे हैं, एंड वी ओके, हैव ए लॉट ऑफ विजिटिंग फैकल्टीज, तो अच्छा हमारा एक पूरा बन जाता है, पूरा माहौल अच्छे से बन जाता है। एंड टीचर्स हियर, व्हाट हैपेंस इज कि जब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल एनएलयूज में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं। हुँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में उतने वाइब्रेंट नहीं आ पाते हैं बच्चे। ओके, बट इसकी वजह से आपको इंडिविजुअल अटेंशन बहुत मिलता है। जैसे कि अगर आप, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने 3 मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कर चुके हैं, तो मुझे इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज्यादा मिले, मुझे बहुत ज्यादा एड मिली, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली यहाँ के टीचर्स से। उनकी वजह से मैं ही आज एक अच्छे पेडेस्टल पे पहुंच पाया हूँ, और आगे भी उनकी हेल्प रही तो मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ग्रेट। सो मतलब इफ नॉट एनएलयू, बेनेट कैन बी अ सुपर ऑप्शन, राइट? Yes, super option. And ओके, comparing, only compare this college to a Jindal, हुँ, because वो भी उसी लेवल पे जा रहा है। राइट, एंड आई रिमेम्बर, मैंने ये इस कॉलेज में एडमिशन लिया भी था, तो हर्ष सर के कह मतलब हर्ष सर की एक वीडियो आई थी उस हुँ, टाइम पे, और हुँ, हर्ष सर ने कहा था कि इफ यू आर गोइंग टू बेनेट, आप समझ लो कि वो भी एक जिंदल के रास्ते में निकल चुका है। सो यस, आई एम ओके, फॉलोइंग हिज पाथ टिल डेट। यस। ओके, ओके। एंड बेनेट एज़ इन ग्रेटर नोएडा में। सो ग्रेटर नोएडा यस, में होने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं अभी? ग्रेटर नोएडा में होने के, बिकॉज इट्स ए कम्प्लीटली सैटेलाइट सिटी टू आर कैपिटल, तो हुँ, ग्रेटर नोएडा में होने के बेनिफिट नहीं है। बट इफ यू आर लिविंग नियर बाय दिल्ली, तो यस, हुँ, इट्स अ हेवन फॉर यू, हुँ, with 7 district court, high court, and almighty Supreme Court. You have wings to open, a sky to fly. There's no comparison to all other cities across India, living in Delhi or another place. ओके। सो एज़ अभी फर्स्ट बैच ही पास आउट हुआ है, देन टू Yes. अगर इतनी प्लेसमेंट्स नहीं है, दिल्ली के होने के कारण, दिल्ली पास में है, सो उस कारण प्लेसमेंट्स तो बहुत अवेलेबल हो सकती हैं बेनेट में, राइट? मैम, प्लेसमेंट्स का दो कारण ही बनेगा यहाँ पे, और हुँ, वो वही रीजन है जो इसको आगे लेके जाएगा। हम ये मान ओके, सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेनेट कॉलेज जो है वो नया होगा, बट टाइम्स ऑफ हुँ, इंडिया 150 सालों से है, उसके राइट, कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। हुँ, तो वो वहाँ यहाँ पे उनका बहुत अच्छा स्कोप है कि वो लोग आगे जा करके हमारी प्लेसमेंट्स अच्छे से करवा सकते हैं, इफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दूसरा ये भी होगा कि कॉलेज जिस तरीके से रन कर रहा है वो भी हुँ, अच्छी कैलिबर रख रहा है कि वो हुँ, प्लेसमेंट दे सकता है। सो यस, दीज आर द टू ओके, मेजर पॉइंट्स। इसमें बच्चों को प्लेसमेंट भी होगा, फॉर श्योर होगा आगे। ओके। एंड व्हाट यू एस्पायर टू बी इन फ्यूचर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, एंड बेनेट आपको कैसे हेल्प कर रहा है उसमें? मैं पूरी तरीके से लिटिगेशन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हुँ, जैसे 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 मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से, मैं फर्स्ट ईयर से जब आया तब से मैंने लिटिगेशन सोच रखा है। अभी भी हुँ, मैं उसी पॉइंट पे हूँ। बेनेट मुझको ऐसे हेल्प करता है क्योंकि मैंने बताया, मैंने मोट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स किए हुँ, हैं, मैं और भी चीज़ों में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, रिसर्च पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किया मेरे टीचर्स ने, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऑल दो ये इस पे मतलब बेसिकली स्पेसिफिकली हेल्प नहीं करता है आपको लिटिगेशन के लिए, बट हुँ, आपको एक रिसर्चिंग, एक आपका वो पूरा ऑरा क्रिएट करता है कि आप उसको अच्छे से आगे से समझ समझ के कर सको चीजों को। तो ओके, वो भी हेल्प मिलती है, और बाकी जो इंडिविजुअल टीचर्स हेल्प करते हैं हुँ, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमको मतलब लोअर कोर्ट का एक्सपीरियंस कराने के लिए टीचर्स क्लास में जो हम लोग को पढ़ाने का स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड टेक ए नेम ऑफ टीचर, हमारे एक सर हैं, जेकब सर हैं। ओके, ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, और वो जिस तरीके से क्लास में पढ़ाते हैं, जो एग्जाम्पल्स देके पढ़ाते हैं, दैट इज फैंटास्टिक। हम लोग को एकदम से थोड़ी देर के लिए लगता है हम लोग तो ट्रायल कोर्ट में ही बैठे हुए हैं, वहीं पे ही केस चल रहा है, ऐसा होता है। ओके, सो यस, एक्सपीरियंस इज वेरी गुड है। ओके। मतलब बच्चों के लिए एक बेनेट बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है इफ दे आर एबल टू पे एंड दे आर रेडी टू पे, राइट? यस, एबल टू पे, रेडी टू पे, इफ दे कैन अवेल स्कॉलरशिप। ओके, ओके। सो थैंक यू सो मच रजत फॉर योर रिव्यूज। आई होप आपके रिव्यूज बच्चों के बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।